ইলেকশনের দিন গন্ডগোল করবেন, তাদের জন্য একটা সাবধান বাণী দিয়ে যান। 19 আর 21 নির্বাচন করেছেন, 24-এ যদি সকাল বেলা থেকে কোথাও দেখি ईंटेर बदले पत्थर का जवाब मिलेगा और ये जवाब करारा जवाब मिलेगा। এইটুকুনি বলতে পারি যে আমাদের যত কার্যকর্তা রয়েছে তাদের প্রত্যেকের কাছে রাত 2টোয় ফোন করবেন, 3টেয় ফোন করবেন, আমরা আপনাদের পাশে রয়েছি। কারোর ভয় পাওয়ার জায়গা নেই, লড়াই এখন জেতার, ভয় পাওয়ার নয়। আর আমরা এমন দল করি, আমরা ভয় পাওয়াইও না। আমরা মানুষের উন্নয়নের কথা বলবো, আমরা এলাকার উন্নয়নের কথা বলবো, আমরা উত্তর কলকাতার উন্নয়নের কথা বলবো, আমরা সার্বিকভাবে উত্তর কলকাতার 7টা বিধানসভা তার কথা উন্নয়নের কথা বলবো। আমরা আমার স্ট্রিটে কি করে জল জমা বন্ধ করা যায় তার চেষ্টা করব। ঠনঠনে গাড়িবাড়িতে কি করে জল জমা বন্ধ করা যায় তার জন্য আমি সাংসদের তহবিলের কাছ থেকে কাছ থেকে আমরা তার জন্য আমরা ব্যবস্থা চাইবো। আমরা এখানকার মানুষের উন্নয়নের কথা বলবো, চাকরির কথা বলবো, যাতে চাকরি করতে গেলে ব্যাঙ্গালোর, মুম্বাই, দিল্লি চলে, গুড়গাঁও চলে যেতে না হয়, আমরা তার কথা বলবো। আমরা কার কথা বলবো? স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বড় বড় ডায়লগ, কিন্তু বাবা তোমাদের যখন বড় বড় নেতাদের কোনো অপারেশন হয়, কেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, কলকাতার বাইরে গিয়ে অপারেশন করাও? তোমাদের এত ভালো চিকিৎসার কথা বলো পশ্চিমবঙ্গে, সেখানে করাও না কেন? তখন তারা চলে যায় বাইরে। চিন্তা করবেন না, এখানে যত মাইকের আওয়াজ যাচ্ছে, যত 70 ঊর্ধ্ব মানুষ রয়েছেন তাদের জন্য বলে যাচ্ছি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি কথা দিয়েছেন 5 লাখ টাকা করে আপনাদের আয়ুষ্মান ভারত কার্ড দেওয়া হবে, তাতে এই রাজ্য সরকারের 1 পয়সাও নেওয়া হবে না। তার কারণ আপনাদের যেটা প্রাপ্য সেটা এই রাজ্য সরকার আটকে রেখেছে। আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড, যে হেলথ কার্ড, সেটা করতে দিচ্ছে না। একদম চিন্তা করবেন না, इस बार 400 पार और পশ্চিমবঙ্গ থেকে 35টা সিট আসছে উত্তর কলকাতায়। আর আয়ুষ্মান ভারত 70 ঊর্ধ্ব সকল মানুষের জন্য নরেন্দ্র মোদীজি এখানে চালু করবেন। আপনারা সকলে নিশ্চিন্ত থাকবেন, এই রাজ্য সরকারের 1 পয়সাও লাগবে না তার জন্য। 100% সেটা নরেন্দ্র মোদীজি দেবেন। সকলকে শুধু একটাই অনুরোধ করব, আরো বক্তা রয়েছেন, বলার অনেক কিছু ছিল, বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রাখতে রাখতে আস্তে আস্তে বলবো। লড়াইটা চোখে চোখ রেখে করবেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমরা বিজেপি, আমাদের যে সৃজনশীলতা রয়েছে, যে সভ্যতা রয়েছে, তার বাইরে গিয়ে আমরা করব না। কিন্তু সেটা যেন কেউ আমাদের দুর্বলতা না ভেবে থাকে, সেটা যেন কেউ আমাদের দুর্বলতা ভেবে না থাকে। আর যদি দুর্বল ভাবেন, যেটা আগেও বললাম আবারও বলছি, 1 জুন নির্বাচনের দিন নির্ভয়ে ভোট দেবেন। ভেতরে থাকবে আমাদের বুথ এজেন্ট, রাস্তায় থাকবে গেটের সামনে সেন্ট্রাল ফোর্স, আর রাস্তায় বিজেপির বাহিনী থাকবে। সবাই মিলে এখানে যাতে নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকবে। আমরা রাস্তায় থাকবো, একদম চিন্তা করবেন না। নিজের ভোট নিজে দেবেন, সকাল সকাল ভোট দেবেন, পদ্ম ফুলে ছাপ দেবেন, তাপস রায়কে জিতিয়ে দেবেন, নরেন্দ্র মোদীকে আবার শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী করবেন, যাতে তিনি আমাদের দেশের উন্নয়ন করতে পারেন। যে ধারা উনি নিয়ে গেছেন, যেভাবে উনি প্রত্যেকটা জায়গায় অগ্রগতি করেছেন কাজের ব্যাপারে, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আজকে যে সুনাম সারা বিশ্বেতে হয়েছে, তার জন্যে। আচ্ছা, আমি পার্থর নামটা বলতে ভুলে গেছি, পার্থকে এখন চোখে পড়লো। আমাদের আরেক সাধারণ সম্পাদক পার্থ চৌধুরী খুব পরিশ্রম করছে। আচ্ছা, আপনারা সবাই ভ্যাকসিন পেয়েছেন করোনার সময়? সবাই পেয়েছেন? সবাই পেয়েছেন বলে জোরে বলতে হবে, না বলেও বলে দিতে হয় না পারলে। সবাই পেয়েছেন তো? ভ্যাকসিনটা কে দিয়েছিল? ভ্যাকসিনটা কে দিয়েছিল? ভ্যাকসিনটা কে দিয়েছিল? হ্যাঁ, তাহলে যাকে ভোট দিচ্ছেন তিনি আমার আপনার সবাইকে ভ্যাকসিন দিয়ে আজকের দিনের বর্তমান পৃথিবীতে লড়াই করার জন্য দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আর যারা বিরোধিতা করছে
তাদেরও সেই ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা এদের মতো তো নই যে বলবো লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছ তো আমায় ভোট দেবে না কেন, আর অন্যকে ভোট দেবে কেন? আরে তোরা চুরি করছিস তাই তোদের ভোট দিচ্ছে না, তোরা সাইকেল নিস, সাইকেল নিয়ে অন্য জায়গায় বেচে দিচ্ছিস তাই তোদের দিচ্ছে না, তোদের রেশনের চাল এখানে মোটা চাল চুরি করিস তাই তোদের ভোট দিচ্ছে না, শিক্ষা চুরি করিস তাই তোদের দিচ্ছে না, বালি চোর তাই দিচ্ছে না, শিক্ষা চোর তাই দিচ্ছে না, যেখানে দেখো সেখানে চোর তাই দিচ্ছে না। কিন্তু আমাদের মোদিজি সবার জন্য ভ্যাকসিন দিয়েছেন। সেই ভ্যাকসিন নিয়ে যারা আজকে তরতাজা রয়েছেন তারাও ওনাকে গালাগালি দিচ্ছেন, কিছু লোক ইন্ডিপিন্ডি চটকাচ্ছেন জোটের, করুন, কোনো অসুবিধা নেই। তার কারণ আমাদের বিজেপির একটা জিনিস খুব ভালো, আমরা দেশকে অগ্রাধিকার দিই সবচেয়ে আগে। তাই আমাদের নির্বাচনের আগে আমরা বিজেপি, আমাদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বিজেপির পদপ্রার্থী, কিন্তু নির্বাচন হয়ে গেলে নরেন্দ্র মোদীজি সারা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, তিনি প্রত্যেকের প্রধানমন্ত্রী, এখানকার মুখ্যমন্ত্রীর মতো শুধু তৃণমূলী চোরদের মুখ্যমন্ত্রী নয়। তাই সকলে মিলে একবার আমার বক্তব্য শেষ হয়ে যাওয়ার আগে একবার আওয়াজ তুলি, উত্তর কলকাতায় জিতবে কে? উত্তর কলকাতায় জিতবে কে? উত্তর কলকাতায় জিতবে কে? ভারত মাতা কি, বন্দে মাতরম। নমস্কার, সকলে ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন, আর 1 জুন নিজের ভোট নিজেরা দেবেন এবং বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে তাদের বলবেন আমার ইচ্ছে রয়েছে উত্তর কলকাতায় পরিবর্তন করি, কিন্তু ভোট দিতে গেলাম না, সেটা হবে না। ভোটটা দিতে যেতে বলবেন, ভোটটা যেন সবাই দেয়, ছুটির দিন না মনে করে, সেইটা দেখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। এবং অনেকে মানুষ যারা বাড়িতে বসে রয়েছেন, হয়তো রাস্তায় নামতে পারছেন না, আমাদের সমর্থক রয়েছেন, তাদের জন্য উদ্দেশ্য করে বললাম, সকলে ভালো থাকবেন, আমার প্রণাম নেবেন, নমস্কার নেবেন। এবং এখানে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ রয়েছে তাদের কাছে আমি প্রণাম জানাই, যারা আমার সমবয়সী এবং আমার থেকে ছোট তাদেরকে অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করলাম। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, অমিত শাহ জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ, সুকান্ত মজুমদার জিন্দাবাদ, শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ। নমস্কার। এটা ভুল হয়ে গেছে, আমি এই মণ্ডলের আশরাফ আলীকে ডাকবো, আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী দীনেশ বাজারজিকে উত্তরীয় করিয়ে সম্মান জানানোর জন্য। আশরাফ আলী। আমার সঙ্গে বিগত 7 দিন ধরে যে মানুষরা কাজ করে চলেছে ক্যাম্পেনিং ডিপার্টমেন্টে, আমার সহকর্মী বলল শ্রী অরুণ আদিত্যকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। দীনেশ বাজারজিকে উত্তরীয় করিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন আমাদের পৌরপিতা শ্রী বিজয় ওঝা। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন পৌরপিতা শ্রী বিজয় ওঝা। भारत माता की, भारत माता की। ये जय जो आवाज है ये हेमंत बिश्व शर्मा की आवाज नहीं है। ये जो हवा आ रही है किसकी आ रही है? हेमंत बिश्व शर्मा कलकत्ता के इस केशव चंद्र सेन स्ट्रीट में आ रहे हैं, तो आवाज भी वैसी होनी चाहिए बंगाल से, भारत माता की। आज की इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष जी, उत्तर कलकत्ता जिला के अध्यक्ष श्री तमग्नो घोष जी, उत्तर कोलकाता लोकसभा के कन्वेनर किशन झंवर जी, 22 नंबर वार्ड की
पार्षदा श्रीमती मीना देवी पुरोहित, समाजसेवी एवं वरिष्ठ राजनीतिक श्री दिनेश बजाज जी और भोला शंकर जी, गुलाब जी और यहाँ उपस्थित मेरी आवाज जहां तक जा रही इस क्षेत्र के सम्माननीय आदरणीय नागरिकगण, इस चुनाव के अंदर आपको एक शोर सुनाई देता होगा। क्या शोर सुनाई देता है? अत्याचारी आज पुनः ललकार रहे हैं, अन्यायों का चलता दमन दुल्हारा है, आंखों के आगे से सत्य मिटा जा रहा है। ये बंगाल के वासी देखो तुम्हारे बंगाल को कैसे लूटा जा रहा है। और इस लूटने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि আমাকে চোর বলবেন না, আমাকে যদি চোর বলো তাহলে আমি কিন্তু कोर्टे जाओ। वैसा कोर्ट में आप जाओ और आप डर से नहीं जाओगे, क्योंकि आप वहां पर प्रमाणित होकर के वो जो हथकड़ी इंतजार कर रही है वो भी हथकड़ी आपको लग जाएगी, लग जाएगी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं तो एक समझ में आता है। आज ये लोकसभा का निर्वाचन है और 10 वर्षों में मोदी जी ने क्या क्या किया है। मोदी जी ने आपके घर घर तक पहुंचाया है कि मैंने 10 वर्षों में आपके लिए ये काम किया है और आपको इस बार 400 पार करना है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती। आज यहाँ पर जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने इलाके में निकलते हैं तो साधारण जनता कहती है अब की बार, अब की बार। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, क्योंकि जनता के मन में है आज क्यों ना वोट दिया जाए। और आज इस उत्तर कलकत्ता के लोगों को, उत्तर कलकत्ता के मतदाताओं को ये विचार भी करना होगा। मैं 42 सीट छोड़ देता हूं, मेरी उत्तर कलकत्ता की सीट को माने रखता हूं, आपके समक्ष रखता हूं। आज हमारे जो उम्मीदवार हैं तापस जी, तापस राय जी टीएमसी के उम्मीदवार हैं, जानते हैं ना आप लोग। 5 बरस में देखे थे क्या? 5 बरस में देखे थे क्या? हम पार्षद कितने वर्षों से हैं? 15 वर्षों से। तीसरा टर्म है, अभी तक चवन्नी नहीं मिली है, अभी तक चवन्नी वार्ड के विकास के लिए नहीं मिली है। इससे बड़ी व्यथा और क्या हो सकती। आपको समझना होगा, जब आप 1 तारीख को बटन दबाने जाएंगे आपको 2 सेकंड का समय लगेगा और उस 2 सेकंड के अंदर आगामी आने वाले 1825 दिन जो 5 वर्ष होते हैं, आपका सांसद कैसा होना चाहिए आपको निर्णय करना होगा। और एक ही आवाज निकलेगी, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। क्योंकि तापस दा का जो राजनीतिक जीवन है ना, जो आपके टीएमसी के उम्मीदवार हैं उनका 50 वर्षों का एक अलग रिकॉर्ड है जो तापस दा बोलेंगे, लेकिन तापस राय का 52 वर्षों का रिकॉर्ड है कि राजनीति के अंदर रह करके भी स्वच्छता के साथ एक जोर गले की आवाज होती है तो वो तापस राय की होती है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और उस पराजित को करने के लिए आगामी 1 तारीख को आपको अपने मत का प्रयोग करना। आज मोदी जी को क्यों वोट न दिया? आज मोदी जी को क्यों ना वोट दिया जाए? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सीना ठोक करके बोलते हैं अब की बार 400 पार क्यों ना हो। आपके इस 400 पार के अंदर 42 लोकसभा सीट के अंदर अगर पहला रिजल्ट आएगा, जीत का पहला कमल बंगाल से जाएगा तो वो उत्तर कलकत्ता में तापस राय के रूप में जाएगा। पूछोगे सवाल तो हम जवाब भी देंगे, लेकिन दीदी आपने 5 वर्षों में क्या क्या किया है उसका हिसाब भी हम लेंगे। जब कहते हैं कि हमारे टाका रुके दिए केंद्र सरकार टाका दिच्छे ना, ये बात आपको हजम हो रही है? ये बात आपको हजम हो रही है? कैसे होगा?
अगर शौचालय बनाने दिया जाए तो उसके अंदर में भी कटमनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने दिया जाए तो उसके ऊपर भी स्टिकर लगा करके वो बंगला का आवास योजना हो जाता है। हम तो 2 वर्षों से 5 वर्षों से चिल्लाते आ रहे हैं, बार बार करते आ रहे हैं कि नेम प्लेट पलट लेने से मोदी जी को रोका नहीं जाएगा, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को रोका नहीं जाएगा। और हुआ भी यही, जब केंद्र की टीम आई तो अपने हाथों से अपने स्टिकर को नोच नोच करके प्रधानमंत्री जी का नाम दिखलाया गया। आप इसको रोक सकते हैं, लेकिन बंगाल के अंदर, बंगाल के लोगों के अंदर मोदी जी का प्रेम है, उसको नहीं रोक सकते। इसीलिए हर गली मोहल्ले में एक आवाज आती है, अब की बार आज मोदी जी को क्यों ना वोट दिया जाए। आज अगर विश्व के किसी भी कोने में भारतीय रहता है, आपका रिश्तेदार रहता है, उससे पूछिए कि मोदी जी के आने के बाद तुमको कैसा अनुभव होता है, तो वो आपको एक ही बात बोलेगा कि मोदी जी के आने के बाद अगर मैं अमेरिका में रहता हूं या रसिया में रहता हूं या फ्रांस में रहता हूं या जर्मन में रहता हूं, तो मुझे गर्व होता है अपने आप को भारतीय कहने में, और गौरव के साथ कहते हैं आई एम इंडिया। ये मोदी जी का कमाल है। मुझे तो जब वो खुशी होती है जब हमारा सीना फूल जाता है। कब? जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चलता रहता है। बड़े बड़े विकसित देश अपने नागरिकों को निकालने के लिए जद्दोजहद में रहते हैं, और जब हम देखते हैं कि बस में बैठे बच्चे वहां पर एक कागज के अंदर एक कलम से तिरंगा बना लेते हैं, तो यूक्रेन और रसिया के गोला बारूद रुक जाते हैं। और उसमें हमने देखा था कि पाकिस्तान के भी बच्चे ही तिरंगा लेकर के भारत माता की जय जयकार बोलते हुए निकले। तो हमारा सीना गौरवशाली क्यों नहीं होगा, और हम क्यों नहीं बोलते। आज उज्ज्वला योजना करोड़ों करोड़ों माताओं के आंखों से वो आंसू बंद हो गया। उज्ज्वला योजना के लिए क्या हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे? और बंगाल के अंदर सारी केंद्रीय योजनाओं को रोकने की पूरी चेष्टा की। हमारी मुख्यमंत्री तो जब बोलती है আমি দিচ্ছি এটাই দিলাম, এর আগে আর কিছু দেব না, ऐसा बोलती है। लेकिन हमारे मोदी जी समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी सेवाओं को ले जाते हैं। अंत्योदय खाद्य योजना के तहत ले जाते हैं। 85 करोड़ भारतीयों को 2029 तक खाद्य की सुरक्षा देते हैं। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। क्यों नहीं वोट देंगे? और 85 करोड़ लोगों के लिए जब कोरोना का समय आया था, अभी तमकमदा क्या बोले कि वैक्सीन, दीदी भी तो वैक्सीन लिए, भतीजा भी वैक्सीन लिया है, सभी वैक्सीन लिए, युवराज भी वैक्सीन लिया है, शहजादा भी वैक्सीन लिया है, और उसके बाद अभी तक तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जब खाद्य के लिए मोदी जी ने कहा कि हम, ओ नारायण जी आप बैठ जाइए। अरे भाई उन्हीं की टैकल कर तुम ऐसे ये हो जावे। आस्ते आस्ते, ये उत्साह है उस भगवाधारी के लिए जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। उसका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। भारत माता की। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो खाद्य जब चालू हुआ 85 करोड़ लोगों के लिए खाद्य की व्यवस्था विश्व के अंदर कोई माइके लाल, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष कर सकता है क्या? जिस तरीके से हम परिवार के अंदर अपने भरण पोषण के लिए एक अभिवाहक के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने खाद्य सुरक्षा का कानून ला करके खाद्य सुरक्षा किए 85,000 लोगों को।
और बंगाल में क्या हुआ? बंगाल के खाद्य मंत्री थे कौन? बालू, जिसको क्या बोले? बालू चोर, पार्थो चोर। तो भाई साहब चोर नहीं तो और क्या? बोला चोर बोलबे ना। কেন বলবে না? কোটি কোটি টাকা ফ্ল্যাটে পাওয়া যাচ্ছে, চোর বলবে না। जो मोदी जी ने खाद्य भेजा उसको खा गए, चोर बोलबे ना। जो चाकरी का पैसा खा गए, चोर बोलबे ना। आज कोयला का पैसा खा गए, चोर बोलबे ना। गाय माता का पैसा खा गए, चोर बोलबे ना। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, बंगाल की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आपको क्या अधिकार है कि आपको चोर ना बोला जाए। मैं तो यही कहूंगा, बंगाल की जनता को आह्वान करूंगा कि बंगाल की जनता खुद को ना समझे निर्बल या कमजोर। हर चौराहे पर अभय पुकारो, चोर चोर चोर। हम लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं हमारे आसाम के मुख्यमंत्री, हम सब के दिलों में राज करने वाले हेमंत जी बिश्व शर्मा। हेमंत जी बिश्व शर्मा स्वागतम। हेमंत जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम हेमंत बिश्व शर्मा स्वागतम। स्वागतम स्वागतम हेमंत बिश्व शर्मा स्वागतम। हेमंत बिश्व शर्मा स्वागतम। स्वागतम स्वागतम हेमंत बिश्व शर्मा स्वागतम। स्वागतम स्वागतम हेमंत बिश्व शर्मा स्वागतम। स्वागतम स्वागतम আচ্ছা, এই প্রকাশ জয়সওয়াল আর সঞ্জয় মিশ্রা দুজনকে বলবো আপনারা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসামের শ্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজিকে ফেলিসিটেট করবেন। প্রকাশ জয়সওয়াল। হাত তুলে একটা হয়ে যাক, হাত তুলে, হাত তুলে, সবাই মিলে হাত তুলে। এই তো বক্তব্য। আচ্ছা, আমাদের সামনে এখন বক্তব্য রাখবেন। আচ্ছা, তার আগে একটা মায়ের ছবি দেবেন। এখানে আমাদের মণ্ডল সভাপতি শ্রী সঞ্জয় মিশ্র এবং শ্রী প্রকাশ জয়সওয়াল মিলে একটা ছবি দেবেন। भारत माता की, भारत माता की। আমি এখন বক্তব্য রাখার জন্যে, যার জন্য এতক্ষণ ধরে সবাই অপেক্ষা করছিলেন, আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের বিজেপির গর্ব শ্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে একটা জোরে সবাই মিলে হাততালি দিয়ে ওনাকে স্বাগত জানান উত্তর কলকাতার মাটিতে। हेमंत बिश्व शर्मा जी स्वागतम। हेमंत बिश्व शर्मा जी स्वागतम। हेमंत बिश्व शर्मा जी स्वागतम। আপনারা সবাই ভালো, একদম
बोलून भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तापस रॉय, तापस रॉय। सभा में उपस्थित हमारे उत्तर कलकत्ता की उम्मीदवार तापस रॉय जी, तमुग्न घोष जी, दिनेश बजाज जी, किसान झावर जी, राजीव सिन्हा जी, विजय ओझा जी, मीना देवी जी, संजय मिश्रा जी, गुलाब सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित कल्याण चौबे जी, भाइयों बहनों पिता और माताओं, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि तपस्दा पहले बोले, लेकिन तपस्दा बोले नहीं, आप पहले बोल लीजिए, बाद में मैं बोलूंगा। ठीक है, जैसे तपस्दा का ऑर्डर है मैं ऐसे ही आप लोग का सामने थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। सबसे पहले इतना रात हो गया, फिर भी आप लोग यहाँ में है, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। भाई और बहनों, चुनाव का 5 फेज 5 चरण हो चुका है और मैं पूरा भारतवर्ष चुनाव के लिए घूमा हूं और मैं दावा का साथ बोल सकता हूं, ये 5 फेज समाप्त होने का साथ साथ मोदी जी ने 300 सीट भी पार कर चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं। भाइयों और बहनों, अभी जो हमारा लड़ाई है वो 400 सीट के लिए है। 300 हो चुका है, 6 और 7 फेज में हमें 400 सीट का लड़ाई लड़ना है। कांग्रेस हो, तृणमूल हो, यहां तक उनका कोई आपत्ति नहीं है। कोई ये नहीं बोलता है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। खाली एक बात वो लोग बोलते हैं, भाई 400 सीट क्यों? आज पूरा आप दिल्ली का मीडिया या जो सेकुलर अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, सबको आप पढ़ो, एक ही बात बोलते हैं, मोदी को 400 सीट क्यों? ठीक है, 400 सीट मत देना, 399 दे देना, हो जाएगा हमारा काम, उसमें भी हो जाएगा। लेकिन आप लोग सोचिए, उनका मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने में इंटरेस्ट नहीं है। कहां में उनका इंटरेस्ट है कि मोदी को 400 की सीट क्यों चाहिए? मतलब उनको भी मालूम है कि 400 सीट आने में मोदी कुछ बड़ा करने वाला है। वो बड़ा क्या है? जब 300 सीट हमें मिला, 500 साल पहले बाबर ने रामलाला का मंदिर को ध्वंस करके बाबरी मस्जिद बनाया था। मोदी जी को 300 सीट मिला और मोदी जी ने राम जन्मभूमि का प्रतिष्ठा किया। 500 साल हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। 500 साल बाद मोदी जी ने रामलाला का प्रतिष्ठा किया। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या हमारा लड़ाई रामलाला में ही समाप्त हो जाएगा? आप लोगों को मालूम होना चाहिए और मैं जानता हूं आप लोग जानते हो, हमारा मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि है, वो कृष्ण जन्मभूमि में औरंगजेब ने शाही ईदगाह बनाया। हमारे बाबा विश्वनाथ का मंदिर का सामने ज्ञानवापी मंदिर होते थे और ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद बनाया था। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, मोदी जी को 400 सीट दीजिए, हमें कृष्ण जन्मभूमि भी बनाना है और हमें ज्ञानवापी मंदिर भी बनाना है। भाइयों और बहनों, काशी मथुरा बाकी है। भाई और बहनों, 500 साल पहले जब हिंदू का ऊपर अत्याचार हुआ था, वो समय भी और आज भी हम लोगों का 3 ही मांग है।
हमें रामलला दीजिए, हमें काशी दीजिए, हमें मथुरा दीजिए, उसका आगे हमारा किसी का साथ टकराव नहीं है। भाई और बहनों, हमें मोदी जी को 400 सीट देना है और काशी मथुरा में भी भव्य मंदिर हमें बनाना है। भाई और बहनों, आप लोगों को मालूम है हमारे जो कश्मीर, वो कश्मीर में 370 धारा थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ाई लड़ा कि एक देश में एक निशान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए। दो निशान, दो प्रधान नहीं हो सकता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन को बलिदान दिया, लेकिन कांग्रेस ने 370 धारा नहीं हटाया। आपने मोदी जी को 300 सीटें दिए और मोदी जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना को साकार किया, 370 धारा हटाया। लेकिन भाइयों और बहनों, मेरा कश्मीर आधे टुकड़ा अभी भी पाकिस्तान का साथ है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है, लेकिन वो कश्मीर भी हमारे हैं। आप मोदी जी को 400 सीट दीजिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमें भारत में लाना है। भाइयों और बहनों, वो हमारे कश्मीर है। आज आप लोग देखिए, पहले जम्मू कश्मीर में आंदोलन होते थे आजादी का। जम्मू कश्मीर में लोग रास्ते में आते थे कि हमें पाकिस्तान को जाने दीजिए। अभी मोदी जी का करिश्मा देखिए, 10-15 डेज से 10-15 दिन से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हंगामा हो रहा है कि हमें भारत जाने दीजिए, हमें भारत जाना है। आज आप लोग देखिए, जो पाकिस्तान